अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे यहाँ पे कैसे करना है। और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव टू यूज हियर इज द मीटर ब्रिज। ओके, आज दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे कैसे करना है। तो हमें क्या दिखाना है? लॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एज यू नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन of resistors, what we do, we connect two or more resistors in such a manner so that one end of one resistor is connected with the first end of the second resistor, and the second end of the second resistor is connected with the first end of the third resistor, and so on. ठीक है, like this. For our convenience, we will consider here the simplest case in which we have suppose two resistors only. Two resistors. यहाँ पे एक simplest case ले लेंगे हम, combination of two resistors, which is the simplest combination of resistors. ठीक है, suppose this is R1 and this is R2. अगर इनको combination इनको join करना है आपस में सीरीज में, तो हम क्या करेंगे? This is the left hand of first resistor, this is right hand of the second resistor. इसका जो right hand है, we will connect it with the left hand of the second resistor. ठीक है, then we can say that two resistors are said to be connected in series between 2 points A and B. A is the free end of the first resistor and B is the free end of the second or the last resistor. Okay, this is the what we call series combination. अब इसी तरह से in parallel combination में हम क्या करते हैं? What we do, we connect. Again, we will consider here the simplest combination. The combination of two resistors. Two resistors are there. Suppose this is R1 and the second resistor is R2. यही दो रेजिस्टर्स, यहाँ पे R1 ले लिया हमने, R2, और पहले हमने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया. एंड द सेकंड केस वी विल कनेक्ट देम इन पैरेलल. पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं? We will connect their left ends together at one point and their right ends together at another point. This is what we call parallel combination of resistors. ठीक है? And according to the law in series combination, what is the equivalent resistance? RS is the equivalent resistance of the combination, and it is equal to the sum of individual resistances. Okay? And in parallel combination, what would be the equivalent resistance? According to the law, the reciprocal of the equivalent resistance in parallel combination, जो P में रखा है इसके यहाँ पे R के साथ नीचे में, तो it represents parallel combination. S represents their series combination, or capital R represents equivalent resistance. So equivalent resistance of series combination here, RP means equivalent resistance of parallel combination. Okay. So in parallel combination, the equivalent resistance is equal to the sum of reciprocals of individual resistances. Okay. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको. It will become RP, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R1 into R2 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा R1 plus R2. This is the expression for the equivalent resistance in case of parallel combination, in case we have only two resistors. Okay, this is the expression when we have two resistors connected in series. This is the expression for the equivalent resistance when we have two resistors connected in parallels. Okay, तो यहाँ पे जब हम R1 का वैल्यू पुट करेंगे R2 का, you will get the equivalent resistance. यहाँ पे जब R1 R2 का वैल्यू पुट करेंगे, you will get the equivalent resistance. Okay, these are the theoretical expression. These are theoretical expressions. Okay, this is also the theoretical expression.
theoretical expression. ओके, अब हम दिखाएंगे, तो ये दो एक्सप्रेशन याद रखना, तो इन्हीं दो को हम वेरीफाई करेंगे। अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया दो रेजिस्टर्स को, तो इक्वल रेजिस्टेंस सम ऑफ रेजिस्टर्स होगी या नहीं। अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बराबर होगी कि नहीं, वो हम वेरीफाई करेंगे। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे यहाँ पे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मीटर ब्रिज। ओके, मीटर ब्रिज इस्तेमाल करेंगे। अब एक एक करके हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे। तो जो सर्किट डायग्राम है, हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू हियर, फर्स्ट पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, उससे दिखाएंगे कैसे कनेक्ट करना है। जैसे कि इससे पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तो पहले मीटर ब्रिज बनाएंगे यहाँ पे। तो एज यू नो दैट मीटर ब्रिज में देयर आर टू एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स। यहाँ पे अभी डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक और कॉपर स्ट्रिप होती है बीच में। तो यहाँ पे दूसरे एंड पे एक और एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप होती है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया डिटेल में। ओके, दीज आर द कॉपर स्ट्रिप्स। And now this is L-shaped copper strip here. इन दो के दरमियान जो L-shaped copper strip है, इन दो के दरमियान कनेक्ट होती है, स्ट्रेच होती है एक वायर, जिसको हम कहते हैं ब्रिज वायर। दिस इज द ब्रिज वायर, और इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। इट इज 1 मीटर लॉन्ग। इट इज स्ट्रेचड बिटवीन दीज टू L-shaped copper strips which are fitted on a wooden board at the two ends of the wooden board, and there is a wooden scale, meter scale, which is held just below the bridge wire. This is the wooden scale. It's 1 meter long. It's a centimeter scale. इस तरह से इसमें स्केल लगी होती है। इसी तरह से this is here 0, फिर 1, 2, 3 and so on up to 100 centimeter. ठीक है, ओके। and this is what we call the meter bridge. meter bridge इतना ही होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देयर आर टर्मिनल्स, यहाँ पे टर्मिनल्स लगे हैं, यहाँ पे भी वो स्क्रूज होते, नट्स लगे होते हैं। ओके, सबसे पहले द गैप ऑन द राइट साइड, जो आपके राइट साइड में जो गैप है, इस गैप में हम कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। जिसके लास्ट टाइम मैंने दिखा दिया, थ्योरी भी हमने डिस्कस किया व्हीटस्टोन ब्रिज की, क्योंकि ये जो मीटर ब्रिज है, इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, सो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहां पे हम कनेक्ट करेंगे वो रेजिस्टेंस जिसकी हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी हो, वो रेजिस्टेंस कॉइल और रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी हो। दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स हियर RB। ठीक है, तो इस यहां से जो रेजिस्टेंस हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R से। एंड वन मोर थिंग इज देयर, गैल्वेनोमीटर विच इज टू बी कनेक्टेड हियर। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, यह कनेक्टिंग वायर यहां से ले जाएंगे, यहां से हम फिर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। अभी दोबारा दिखाएंगे, इसको जोड़ना दिया अभी। तो यहां से एक और टर्मिनल उसके साथ वायर कनेक्ट करें, कनेक्ट वायर, तो उसके साथ जॉकी लगाएंगे ऐसे। देन द जॉकी इज टू बी प्रेस्ड एनीवेयर ऑन दिस ब्रिज वायर। सपोज यहाँ पे हमने प्रेस कर दी, तो यहाँ पे जंक्शन, दिस इज जंक्शन A अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दिस इज जंक्शन B एंड दिस इज जंक्शन D।
तो यहाँ पे जहां पे हमने जाकी लगा दी वहां पे एक और टेम्पररी जंक्शन बनेगा जिसका नाम दिस ए, दिस इज सी है, दिस इज बी, टेम्पररी जंक्शन। ओके, अराउंड थ्योरी जो हमने थ्योरी पहले ही डिस्कस किया उसी के हिसाब से। ओके, तो ये हमने सर्किट जोड़ा। इसके लिए अब पावर सप्लाई चाहिए, तो पावर सप्लाई कैसे कनेक्ट करते हैं, यहां से ले लेंगे कनेक्टिंग वायर, यहां से कनेक्टिंग वायर, इस कनेक्टिंग वायर में हम जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई में हमें क्या चाहिए, पहले वन वे की, के इज हियर, वन वे की, उसके साथ एक सेल। तो सेल हम खुद बनाएंगे यहाँ पे या बाजार से भी खरीद सकते हैं। एक सिंगल सेल एवरी या नेविनो गोल्ड जो भी अवेलेबल होगी, उसका ईएमएफ 1.5 होता है जनरली, पर लैब में हमारे पास मटेरियल होता है, उसको हम मिलाकर हम एक सेल बना सकते हैं। तो लिक्वान सेल हम बनाएंगे। हेयर इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, यह पावर सप्लाई। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस कॉइल हमें कनेक्ट करनी है जिसकी रेजिस्टेंस हमें मेजर करनी हो। तो सबसे पहले अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ओके, ये देखो बेटा, ये हमारे पास है मीटर ब्रिज। ये तो मैंने इसी के हिसाब से जैसे डायग्राम है, ये ऊपर की तरफ जो राइट साइड में एक गैप है, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस कॉइल कनेक्ट करेंगे जिसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी हो। जो लेफ्ट साइड में गैप है, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे जिसकी रेजिस्टेंस मेजर, जहां से हम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहां से ये स्केल है, मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, 1 मीटर लॉन्ग, इसके ऊपर ये वायर है, इसके नीचे एक मीटर स्केल लगी है। तो दीज आर द टू टर्मिनल्स। ओके, तो यहां से हम इसके साथ पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो इस गैप में वो रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ से वो रेजिस्टेंस जिसके रेजिस्टेंस में मेजर कर रही है। तो सबसे पहले पावर सप्लाई हम बनाएंगे, उसके लिए सेल को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। इसको पहले सेल बनाते हैं, लिक्वान सेल। तो ये बीकर है, पहले भी मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं। तो इसमें डालेंगे हम ये प्लेन वाटर, ये प्लेन वाटर डाल दिया मैंने। और इस प्लेन वाटर में हम क्या करेंगे, कुछ अमोनियम क्लोराइड इसमें डाल देंगे। लिखा है इस पे अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये अमोनियम क्लोराइड हम इसमें डाल देंगे। बनाएंगे एक सोल्यूशन अमोनियम क्लोराइड का। एक स्कूल लैब में अवेलेबल होती है अमोनियम क्लोराइड। अगर वहां पे नहीं हो, केमिस्ट्री लैब में भी हो सकता है ये अमोनियम क्लोराइड। तो वहां से लाकर आप एक सोल्यूशन बना सकते हैं प्लेन वाटर का। इसको मिलाते हैं, बहुत डालना होता है इसमें। तो ये पहले से कुछ डाला था हमने और डाला आपके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोड इसमें डालेंगे। एक पोर स्पॉट होता है, जैसे पहले भी मैंने बता दिया, इस पोर स्पॉट के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड, चारकोल पाउडर पेस्ट फॉर्म में होता है। तो उसमें इमर्स की जाती है एक कार्बन रॉड, यहां से यहां तक होती है एक कार्बन रॉड, ठीक है। तो ऊपर से ही सील किया जाता है फिर, ठीक है, सैलिक शील। तो फिर दिस विल एक्ट एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, ये इमर्स करेंगे इस अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन में। और होती है जिंक रॉड, एमलगमेटेड जिंक रॉड। दिस इज जिंक रॉड जो मेरे हाथ में है। तो ये भी इसमें डालेंगे। तो पहले हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे एक वायर। ये हम यहाँ पे पहले कनेक्ट करेंगे इसके साथ वायर। ये यहां से हम वायर कनेक्ट करेंगे। तो इस नट को हम टाइट करेंगे। अब ये हो गया बंद, ये डालेंगे इसमें। तो इस तरह से बन गई सेल, लिक्लान सेल। जो बाजार में अवेलेबल होती है वो भी लिक्लान सेल ही होती है, ड्राई सेल। तो इसके साथ भी एक वायर कनेक्ट करेंगे। ये यहां से कनेक्ट करेंगे दूसरी वायर, दूसरे टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। And let me tell you one thing, the carbon rod always acts as positive electrode in a cell.
तो यहाँ से ये जो अमेलगमेटेड जिंक रॉड है इट जनरली एक्ट्स एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये डाल दिया हमने इसमें, ये बन गई सेल। अब इसको चेक करते हैं सेल बन गई या नहीं बन गई। तो ईएमएफ कितना है इसका वो भी चेक करेंगे। पॉजिटिव में रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव में रखेंगे। ये बन गई सेल, डिप्लेशन दिखा रहा है, डिप्लेशन। देखिए कितना ईएमएफ है इसका, इट इज अबाउट 1.45। ठीक है, ओके। अगर हम उल्टा कनेक्ट करेंगे तो ये रिवर्स में डिप्लेशन दिखाएगा। देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ और ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, ये डिप्लेशन रिवर्स में। ठीक है ना, उसका मतलब है ये सही कनेक्ट नहीं है। तो हमें पॉजिटिव रेड के साथ, नेगेटिव ब्लैक के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, ओके। तो ये सेल बन गई। अब ये यहां से हम रखेंगे, इसके साथ 1 वे की जोड़ेंगे। तो यहां से मैं दिखा दूंगा कैसे जोड़ना है। तो ये वाला एंड ले लेंगे पॉजिटिव, तो इसके साथ पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे यहां से। ठीक है, इसको टाइट करते हैं पहले, क्योंकि कनेक्शन शुड बी नीट, क्लीन एंड टाइट। लूज नहीं रहना चाहिए। अगर लूज रहेगा तो वहां रीडिंग सही नहीं आएगी, क्योंकि जहां पे जंक्शन बनेगा वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। अगर वो लूज होगा तो बहुत ज्यादा होगी, तो एरर ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये रखेंगे हम पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ हम पहले मान लीजिए की कनेक्ट करते हैं यहां से। ये 1 वे की है। ये जो प्लग है ये पहले हमने निकाल के रखा है। तो इसके साथ एक और की इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये याद रखना। की हमेशा सीरीज में कनेक्ट की जाती है, जनरली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ। सेल का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसी के साथ की कनेक्ट करते हैं। जब कनेक्ट करेंगे तो ये प्लग हमेशा निकाल के रखना होता है फॉर आवर सेफ्टी। ये देखिए सेफ्टी किस लिए, अगर ये किसी यहां से कनेक्ट भी हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा नहीं रहेगा। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो वायर जल्दी से हीट अप हो जाएगी, हमारे हाथ जल सकते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखना होता है। तो यहां पे हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज द पॉजिटिव साइड, ये रखेंगे हम नेगेटिव साइड। तो यहां से हम कनेक्ट करेंगे negative electrode of the cell, right side। ये हो गया कनेक्ट। ठीक है, अब इसके साथ अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, वोल्टमीटर की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे, जैसे लास्ट टाइम मैंने दिखा दिया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। देयर आर नंबर ऑफ कॉइल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रेजिस्टेंस कॉइल्स आर कनेक्टेड देयर इन सीरीज। ठीक है ना, ये सीरीज में यहाँ से उसका एक एंड फिर दूसरा एंड इसके साथ, तो दूसरी कॉइल यहाँ, तीसरी कॉइल यहाँ, इसी तरह से। तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। मगर जब हम सारे ये कॉइल्स ये प्लग ऊपर से लगा के रखेंगे तो वो बाईपास हो जाती है। तो करंट कैसे फ्लो होगी, डायरेक्ट यहां से। द करंट विल नॉट पास थ्रू एनी कॉइल। अगर हम यहां से ये वाली की निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये वाली कॉइल बाईपास नहीं हो जाएगी, सारी कॉइल्स बाईपास हो गई है इनकी प्लग से। तो जब यहां से करंट जाएगी फिर वो पहले उस कॉइल, यहां से जब करंट एंटर हो जाएगी रेजिस्टेंस बॉक्स में, पहले वो इस कॉइल के में फ्लो हो जाएगी। तो यहां से निकलकर फिर यहां से जाएगी। ठीक है ना, तो ओनली इन दिस केस ओनली फर्स्ट कॉइल विल कम इनटू द सर्किट, और उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वही सर्किट में आ जाएगी। अगर हम ये दूसरा प्लग भी निकालेंगे दिस टाइम 2 कॉइल्स विल कम इनटू द सर्किट, बाकी कॉइल्स बाईपास से है। ठीक है ना, तो पहले करंट इस कॉइल में जाएगी, यहां से निकलकर दूसरी कॉइल में जाएगी। ठीक है ना,
एंड सो ऑन। तो इस वक्त जो टोटल रेजिस्टेंस होगी, टू कॉइल्स आर इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस होगी 2 + 1 3 ओम। इज क्लियर टू? जैसे पहले भी मैंने समझा दिया, तो दोबारा यहाँ थोड़ा सा बोर्ड पे समझा देंगे। ये टर्मिनल्स है इस तरह से, इनके बीच में एक होल होता है, इस तरह से मैं दिखा दूंगा। कॉपर ब्लॉक्स है ये, छोटे छोटे ब्लॉक्स, ऐसे भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहां नीचे, इसके नीचे यहां से एक कॉइल कनेक्ट होती है, उसका दूसरा एंड इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से यहां एक और कॉइल कनेक्ट है, रेजिस्टेंस कॉइल, उसका दूसरा एंड इसके साथ। इसी तरह से यहां से एक और रेजिस्टेंस कॉइल कनेक्ट होती है, तो उसका एक एंड दूसरे रेक्टेंगुलर जो यहाँ पे जो ब्लॉक है, कॉपर ब्लॉक, इसके साथ कनेक्ट है, छोटा सा। इसी तरह से कॉइल्स कनेक्ट होती है विद इन द रेजिस्टेंस बॉक्स, अंदर से इस तरह से कॉइल्स होती है। तो यहाँ पे कितने होल्स है? 1 2 3 4 सॉकेट्स आर देयर। कॉइल्स कितने हैं? 1 2 3 4। जितने सॉकेट्स होंगे, सॉकेट, ये होल को कहते हैं हम सॉकेट, इसमें हम फिर प्लग लगाते हैं। ठीक है ना? तो सॉकेट्स आर 4, कॉइल्स आर 4 एंड इट इज ऑब्वियस हियर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब हम क्या करेंगे, यहां से ये प्लग लगाएंगे, इसमें भी प्लग लगा के रखेंगे, ऐसे इसमें भी प्लग लगा के रखेंगे, तो क्या होगा? तो जब करंट यहां से आ जाएगी, तो सीधे यहां से वो यहां से पास नहीं होगी, क्योंकि यहां से रेजिस्टेंस, अपोजिशन, करंट विल प्रेफर टू फॉलो ए लो रेजिस्टेंस पाथ। यहां से लो रेजिस्टेंस पाथ है, बिकॉज दीज टू आर कनेक्ट टुगेदर। तो करंट विल गो थ्रू दीज ब्लॉक्स स्ट्रेट विदाउट पासिंग थ्रू दिस कॉइल, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है यहां से। तो यहां से भी इसी तरह से करंट दी जाएगी विदाउट पासिंग थ्रू द सेकंड कॉइल, देन तो यहां से भी डायरेक्ट दी जाएगी तो एक और दूसरे ब्लॉक में, तो विदाउट पास थ्रू द थर्ड कॉइल एंड सो ऑन। तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस होगी वो ऑलमोस्ट 0 होगी रेजिस्टेंस बॉक्स की। अब अगर हम इसके नीचे लिखा होगा 1 ओम, इसके नीचे 2 ओम, इसके नीचे फिर 2 ओम, फिर 5 ओम, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज। अगर ये प्लग यहां से निकालेंगे तो क्या होगा? ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो जब करंट यहां से आएगी, देयर इज ओनली वन पॉसिबल पाथ, तो यहां से तो उसको जरूरी इस रेजिस्टेंस में से गुजरना पड़ेगा, जिसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम, फिर डायरेक्टली जाएगा यहां से। तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी 1 ओम रेजिस्टेंस। अब अगर ये प्लग भी निकालेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो गया यहां से। अब करंट पहले इस कॉइल में पास हो जाएगी, फिर यहां से निकलेगी, देन इट हैज टू गो, देयर इज ओनली वन पॉसिबल पाथ हियर अगेन, therefore the current will pass through first through this resistance coil and then goes through these all blocks. ठीक है ना? तो in this case the two coils are in series, therefore total resistance will be 3 ohm. तो 3 ohm उस वक्त सर्किट में आ जाएगी रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर ये भी निकालेंगे तो अगेन, तो अब ये इंट्रोड्यूस हो गई तीसरी कॉइल, तो उस वक्त जो टोटल रेजिस्टेंस होगी 2 + 2 + 1 हो गए 5 ओम। इज दिस क्लियर? अगर ये भी निकालेंगे, This is clear? तो अब 1 2 3 4 all the coils are active now. तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो इनका सम वो 10 ओम के बराबर होगा। अगर हम ये लगा के ही रखेंगे इस तरह से, ये की या ये प्लग यहाँ पे लगा के ही रखेंगे, तो करंट पहले इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, यहाँ से ये कॉइल बाईपास हो गई। ठीक है ना? ये बाईपास हो रही है क्योंकि प्लग लगा है, तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगी। उस वक्त 3 रेजिस्टेंस और कनेक्टेड इन सीरीज, 5 2 एंड 1, कितना हो गया? 8 ओम रेजिस्टेंस। इसी तरह से ये काम करता है, ये ऑपरेट कर रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, ये मैंने समझा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे काम करता है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स हम यहाँ पे लगाएंगे, तो इसके लिए कनेक्टेड वायर्स का इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहां से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाला टर्मिनल इसमें लगा देंगे, ये कनेक्टिव वायर कॉपर की जो कनेक्टिव वायर होती है वो कॉपर की हम यूज करते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इसलिए हम यही इस्तेमाल करते हैं। और रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस कॉइल हो रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। आप अगर यहाँ से पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव एक्ट करेगा, नेगेटिव के साथ एंड कनेक्ट करोगे तो नेगेटिव एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और वायर कनेक्ट करेंगे इसके साथ, जोड़ रहे हैं यहाँ से हम। हो गया बंद। इसी तरह से ये हमने इस गैप पे लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स। देखिए यहां से ये टर्न इसके साथ, ये टर्न इसके साथ, हो गया। तो यहां से इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ रेजिस्टेंस। मान लीजिए 2 ओम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करके रखिए पहले से। ये प्लग 2 ओम की जो प्लग है वो निकाल के रखेंगे तो 2 ओम विल कम इनटू द सर्किट, ओके। तो यहां से वो रेजिस्टेंस कॉइल जिसकी हमें रेजिस्टेंस मेजर करनी है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कॉइल्स हमारे पास 2 है, 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स आर देयर। तो क्योंकि हमें इनको कंबाइन करना है सीरीज में पैरेलल में, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ऊपर लेबल लगाएंगे, R1 नाम रखेंगे एंड R2, ताकि कंफ्यूजन ना हो। R1 इसी तरह से R2। अगर इसे दिखाई नहीं दे रहा है तो मार्कर से लिखेंगे हम। This is R1, this is R2। तो ये 2 कॉइल्स पे लगाएंगे अलग अलग लेबल, R1 नाम रखेंगे अलग, ये R1 कॉइल है तो यहाँ पे लगाएंगे। तो ये R2 कॉइल है ताकि कंफ्यूजन ना हो, R1 कौन है R2, ये R2 कॉइल है। दिस इज R1 कॉइल, दिस इज R2 कॉइल, ओके। R1 कॉइल, R2 कॉइल। तो कॉम्बिनेशन जो हम बनाएंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हम 2 कॉइल्स के दरमियान बनाएंगे। 3 भी ले सकते, 4 भी ले सकते हैं, और उसमें टाइम लगेगा ज्यादा। तो इज द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन, ओके, बिटवीन 2 कॉइल्स, ओके। तो यहाँ पे पहले हम R1 कनेक्ट करेंगे। पहले देखेंगे इसकी रेजिस्टेंस क्या है, तो उसके लिए हम ये हम ज्यादा लंबी है तो ये हम यूज करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे पहले रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस कॉइल। इसके अंदर रेजिस्टेंस कॉइल हो सकती है, कार्बन रेजिस्टर का भी आजकल इस्तेमाल किया जाता है। जो ये बॉक्स है इसके अंदर कुछ नहीं है, एक रेजिस्टेंस कॉइल या कार्बन रेजिस्टेंस हो सकती है। पहले रेजिस्टेंस कॉइल इसका इस्तेमाल किया जाता था, अब कभी कभी इसमें कार्बन रेजिस्टेंस का भी इस्तेमाल होता है। तो दूसरी कॉइल, ये रेजिस्टेंस कॉइल R1 है, यहाँ इसके साथ ही जोड़ेंगे कनेक्टिंग वायर। जो कनेक्टिंग वायर होगी ये ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, सूटेबल साइज की होनी चाहिए। ये देखिए, अब यही रेजिस्टेंस कॉइल हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे R1। पहले इसकी रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे। तो ये मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहां से। ये हो गया कनेक्ट। R1 टाइट है, ये भी टाइट है, ये भी टाइट है, ये भी टाइट है, ओके। अब इसके बाद गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है, ये रखेंगे यहाँ पे, इसके साथ वायर जोड़ेंगे हम। जो बीच वाला यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ भी एक ही जंक्शन एक्टिव होगा। इट विल एक्ट एज ए सिंगल जंक्शन, जैसे थ्योरी में हमने डी से दिखाया।
तो आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ इसके साथ एक ही बार, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये रखेंगे हम नेगेटिव के साथ। पॉजिटिव के साथ रखेंगे, उल्टा डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो यहाँ ही कनेक्ट करेंगे। नेगेटिव एक और वायर चाहिए लंबी सी, तकरीबन मोर देन ½ मीटर लॉन्ग, जो जॉकी के साथ कनेक्ट करेंगे, जॉकी के साथ, क्योंकि जॉकी को स्लाइड करना है, ऐसे छोटी वायर नहीं चलेगी। जब यहाँ से कनेक्ट करेंगे जॉकी ऐसे जानी चाहिए, तो इतनी लंबी वायर इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। के साथ कनेक्ट करेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल रह गया तो इसके साथ जॉकी, ये जॉकी है, जैसे लास्ट टाइम मैंने बता दिया, ये इसका टर्मिनल यहाँ से है, इसका ये शार्प एज होता है, ये शार्प एज होना चाहिए वायर पे परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर टू वायर। ओके, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 2 ओम रेजिस्टेंस हमने इंट्रोड्यूस कर दी है। इससे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल दिखाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल आप हर एक रेजिस्टेंस कॉइल के लिए अलग अलग दिखा सकते हो या एक ही दिखा सकते हो। तो एक ही अगर दिखाएंगे तो इस तरह से बनेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस कॉइल और कॉइल्स, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन, कौन सी कॉम्बिनेशन होगी। फिर सेकंड कॉलम में यहां पे सीरियल नंबर होगा, उसके बाद रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो यहां पे इस कॉलम में। फिर है बैलेंसिंग लेंथ, जिस पर ब्रिज लिखेंगे, हम जनरली हम सेंटीमीटर में लेते हैं, तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे इन सेंटीमीटर, दिस इज इन ओम, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स, कॉइल की रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां पे लिखेंगे वो। तो यहां पे लास्ट पे मीन रेजिस्टेंस, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस निकलेगी वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला है R इंटू 100 माइनस L डिवाइड बाई L, ठीक है, ये इसकी फॉर्मूला है। R1 एक रेजिस्टेंस कॉइल है, ठीक है, सिंगल रेजिस्टेंस। तो ये यहां पे इसके लिए ऑब्जर्वेशन लिखेंगे हम, ये एक बॉक्स बनाएंगे खाली R1 के लिए, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लेंगे R1 के लिए। उसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस ले लेंगे R2, उसकी रेजिस्टेंस मेजर करेंगे प्रैक्टिकली। तो ये दूसरी रेजिस्टेंस है R2, ये हम इसके लिए अलग सेपरेट बॉक्स बनाएंगे हम। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, उसकी इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहां पे देखेंगे
सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल और एस से, यहां पे लिखेंगे ऐसे। दिस इज R1 हियर, दिस इज R2। इसके लिए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे हम यहां पे, नोट करेंगे इसमें। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हम RP से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे दिखाएंगे। दिस इज R1 हियर, दिस इज R2, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ये हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B, दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B। ओके, सबसे पहले R1 अब कनेक्ट करेंगे इस गैप में, विच इज प्रोवाइड ऑन द राइट साइड, ठीक है ना। ये कनेक्ट कर दिया। तो इसके बाद बाकी चीजें जो इनकी जरूरत नहीं है ये यहाँ पे रखेंगे हम। ओके, ये मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट करना है, तो ये जो प्लग्स लगे हैं या कीज ये टाइट होनी चाहिए, इसको चेक करना पड़ता है पहले, ऐसे दबाना होता है पहले थोड़ा सा। अब चेक करते हैं। इसको ऑन करेंगे पहले, ये ऑन किया तो यहां से करंट निकलेगी। जब करंट निकलेगी तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे टच कराएंगे, देखेंगे डिफ्लेक्शन हो रही है। कौन सी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है? देखिए डिफ्लेक्शन क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब यहां पे टच कराएंगे, ये दिखा रहा है नेगेटिव डिफ्लेक्शन। तो ठीक आ रहा है, ठीक है ना, ठीक दिखा रहा है। अगर यहां पे टच करेंगे वहां पे टच करेंगे तो अगर ये वन साइडेड डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो उसका मतलब क्या है, जैसे पहले भी मैंने बता दिया, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सर्किट, इज अ फॉल्ट इन द सर्किट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू रिमूव दैट फॉल्ट, वी हैव टू चेक द सर्किट, ठीक है ना। जब फॉल्ट रिमूव करेंगे तब ये दिखाएगा, तब ये दिखाना चाहिए। फॉल्ट रिमूव करने के बाद जब एक एंड पे रखेंगे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, दूसरे एंड पे अपोजिट डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हमारा सर्किट सही है और चल भी रहा है, ठीक है ना। ओके, ये हमने कनेक्ट कर दिया अच्छी तरह से। अब स्टार्ट करेंगे यहां से, पहले बीच में रखेंगे 50 सेंटीमीटर, जहां पे यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्शन कहाँ है, लेफ्ट साइड। तो इसको यहां से स्लाइड करेंगे, वहां से स्लाइड करने से डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रही है, तो यहां से लेफ्ट साइड ही इसको स्लाइड करना पड़ेगा। तो यहां आ रहा है 30। तो बैलेंस पॉइंट आना चाहिए 30 से अबो, तकरीबन 40 से लेकर 50 तक के दरमियान अगर आएगा, उसमें एरर्स कम होते हैं। तो 2 ओम पे नहीं आ रहा है तो 3 ओम पे देख रहे हैं, 2 ओम पे आ रहा है तकरीबन 30 पे बैलेंस पॉइंट, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, ये भी कम पड़ रहा है, तो 4 ओम पे देखेंगे, ये भी चलेगा। मगर अगर बीच वाले पोर्शन में 40 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक अगर बैलेंस पॉइंट आ जाए, या 35 से भी ले सकते हैं, 35 से लेकर 50 या 60 तक अगर इस बीच वाले पोर्शन में ले लेंगे तो एरर्स बहुत कम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना होता है। तो 4 ओम से स्टार्ट किया हमने, ये यहाँ पे नाल पॉइंट दिखा रहा है। यहाँ पे नल पॉइंट, तो 47 इज 47.1। फिर से चेक करते हैं, देखिए 70 दोनों चीजें दिखनी चाहिए। देखो जब हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो वहां से डिफ्लेक्शन बढ़ रही है, राइट साइड ले रहे हैं डिफ्लेक्शन कम हो रही है। तो एक जगह यहाँ पे 0 बन रहा है, इट इज 47 एग्जैक्टली। देखिए 47 पे, ठीक है। 47 पे बैलेंस हुआ है। तो 47 यहां से हमने कितनी रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया, 2 ओम।
4 ओम। तो सीरियल नंबर 1 4 ओम दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बैलेंसिंग आ रही है 47, ठीक है। अब दूसरी रीडिंग में हम क्या करेंगे, 5 ओम पे देखते हैं। ये है 5 ओम की, ये निकालेंगे और 5 ओम पे देखते हैं। तो यहाँ पे बीच वाले पोर्शन में रखेंगे, ये दिखा रहा है वहां, देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है। देखिए कहाँ पे है, ऊपर वाली स्केलों में लेनी है। इट इज 53 किस पे, 5 ओम पे। रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने 5 ओम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया, 53 पे आ रहा है। अब देखेंगे 6 5 और 1 निकाले हमने, 5 + 1 हो गया 6 ओम। तो 6 ओम, तो अब 6 ओम पे देखेंगे, ये बीच में हमने रख दिया, यहाँ से राइट साइड स्लाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे आ रहा है 0। ठीक है, इट इज 58 है। तो यहाँ पे 58 लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 ओम पे आ रहा है, 2 और 3। ये इसके लिए 3 ऑब्जर्वेशंस। अब क्या करना है, ये जो R1 है इसको निकालेंगे यहाँ से, ये निकाल दिया। अब R2 हम कनेक्ट करेंगे, दिस इज R2 हियर, R2, ये R2 हम कनेक्ट करेंगे इसमें। अब इसकी रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, इसके लिए ऑब्जर्वेशन ले लेंगे पहले, लास्ट में कैलकुलेशंस करेंगे हम। एक वायर कनेक्ट यहां से कर दी, दूसरी वायर इसमें कनेक्ट कर दी, उसे टाइट करना है। कनेक्शन शुड बी नीट, क्लीन एंड टाइट। ओके, ये टाइट हो गया। अब दोबारा रिपीट करेंगे इसी तरह से। ओके, तो यहां से दूसरे के 1 2 और 3 ऑब्जर्वेशन। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम इंट्रोड्यूस करेंगे 2 ओम रेजिस्टेंस। ये 2 ओम रेजिस्टेंस पहले हमने इंट्रोड्यूस कर दी, ये देखिए इसमें लिखा है 2 ओम रेजिस्टेंस। ओके, अब यहां से स्टार्ट करेंगे इसको ऑन, ये ऑन ही है। तो बीच में रखेंगे पहले, देखते हैं डिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है, ये लेफ्ट साइड। तो इसको ले जाना, स्लाइड करना पड़ेगा लेफ्ट साइड ही। ये देखिए बैलेंस कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है तकरीबन 34 पे। तो यहाँ से रेजिस्टेंस हम इंट्रोड्यूस करेंगे, 3 ओम पे देखेंगे, कम पड़ रही है, ये भी ले सकते हैं, मगर एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए बीच वाला पोर्शन लेंगे, तो वहां पे रेजिस्टेंस कम एरर्स कम आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जो कैलोरीमीटर है इसमें थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, ये एग्जैक्टली 0 पे पॉइंट नहीं है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसे। ये एग्जैक्टली 0 पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 पे, ठीक है। तो लेंथ क्या है, बैलेंसिंग लेंथ 0 पे 44.5, ठीक है, 44.5 है। यहाँ पे लिखेंगे 44.5 सेंटीमीटर। ओके, इस वक्त रेजिस्टेंस कितनी इंट्रोड्यूस की थी हमने, 2 + 1 3 ओम। अब देखेंगे 4 ओम पे, अब 4 ओम पे यहां से निकाल कर इसमें रखेंगे, 2 + 2 हो गया 4। तो यहां पे देखेंगे, ये दिखा दो 4 ओम, यहां से 2 + 2 4 ओम रख दिया हमने रेजिस्टेंस।
तो यहाँ पे अब 4 ओम पे देखते हैं बैलेंस लेंथ कहाँ पे आ रहा है, नल पॉइंट ये आ रहा है यहाँ पे नल पॉइंट 51 पे। देखिए 51 पे ठीक है ना, 51 पे आ रहा है। तो 51 इज हियर, तो 51.0 सेंटीमीटर, तो 4 ओम पे हमने देखा ये। अब देखेंगे 5 ओम पे, एक की यहाँ से निकाल कर इसमें रखेंगे, ये भी बांधी रखेंगे, तो एक ही की 5 ओम वाली कॉइल इस वक्त सर्किट में आ जाएगी। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करते हैं। ये स्लाइड हो रहा है, देखिए मैं इसको दिखा रहा है डिफ्लेक्शन। अब 0 पे लाते हैं, तो ये आ गया 0 पे, ये आ गया 0 पे। तो इस वक्त क्या है लेंथ 56 57, तो 57 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 ओम पे जो हो गया। दूसरी रेजिस्टेंस कॉइल के लिए जो ऑब्जर्वेशन हमने लिए, अब इनको हम पुट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकलेगा R1 R2, वो बाद में देखेंगे हम कैलकुलेशंस। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो रेजिस्टर्स को हम यहाँ से निकाल के रखेंगे, तो इनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो और कनेक्टिंग वायर चाहिए हमें, तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे अभी मैं दिखाता हूँ। एक कनेक्टिंग वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है, यहां से हम कनेक्ट करेंगे इसको खोलेंगे हम पहले। अब हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इस सीरीज में हम कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। This is the series combination. This is what we call series combination. अब देखिए इस सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से करंट आएगी, फिर इस कॉइल में जाएगी, यहाँ से निकलेगी, फिर इस कॉइल में, फिर यहाँ से निकलेगी। These are the two free ends of the series combination of resistors. ठीक है, यहाँ से मैं सर्किट में भी दिखा दूंगा। पहले हमने R1 कनेक्ट किया यहाँ से, फिर उसको रिमूव किया, फिर R2, अब ये भी रिमूव करेंगे। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ से पहले R1, फिर R2, दिस इज R1 हेयर, दिस R2, ये हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इस गैप में लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। अब इसको हम सीरीज में इसको इस गैप में कम लगा देंगे हम, जो आपके राइट साइड में है। तो गैप प्रोवाइड ऑन योर राइट साइड। ओके, दीज आर द टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। एक सीरीज कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लगा दी। अब रिपीट करना पड़ेगा इसी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ तो जब सीरीज में होगा तो रेजिस्टेंस, अब जैसे कि रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट कर दी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ऑब्वियस। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो होनी चाहिए, ताकि बैलेंस पॉइंट बीच वाले पोर्शन में आ जाए। बीच वाला पोर्शन जो बीच वायर का है उसमें आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ से भी ज्यादा रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे। 5 ओम से चेक करेंगे, देखते हैं। तो इसको ऑन करेंगे, पहले प्लग लगा दिया, ये दिखा रहा है डिफ्लेक्शन, ये यहाँ पे आ रहा है 36 पे। तो 5 ओम कम पड़ रहा है, तो 6 ओम से देखेंगे हम। ठीक है, राइट साइड डिफ्लेक्ट करेंगे तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ लेफ्ट साइड इसको स्लाइड करेंगे तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक जगह पे ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पे शाबाश, ये देखिए कितनी है, ये
यहाँ पे दिखा रहा है नल पॉइंट, तो इट इज 41.5, 41.5 पे दिखा रहा है नल पॉइंट 41.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहली ऑब्जर्वेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए तो इंट्रोड्यूस किए है 5+1, 5+1 तो है रेजिस्टेंस, तो यहाँ 6 ओम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ पे रखेंगे 5+1, अब ये 5+2 करेंगे हम, 5+2 7 पे, तो लिखेंगे 7 ओम। दूसरी ऑब्जर्वेशन, तो इस पे चेक करते हैं बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए अब यहां पे आ रहा है, ठीक है, हाँ यही है, इट इज 45.5, 45.5, तो 45.5 सेंटीमीटर पे आ रहा है। तो अब हम 8 ओम पे देखते हैं, इस 5, 2 and 1 हो गया 8 ओम। तो 8 ओम पे देखते हैं, 8 ओम है, 8 ओम पे देखते हैं बैलेंस पॉइंट कहां पे आएगा। देखिए तो यहां पे आ रहा है, कितना है ये, इट इज 49.2, 49.2 सेंटीमीटर पे आ रहा है। इट्स क्लियर। तो हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दिखाएंगे। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे तो ये दिखाएंगे। ये होगा यहां से कनेक्ट, इसको हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं इस वक्त। their left hands are connected together and their right hands are connected together at another point, another junction. This is what we call parallel combination. इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यह पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनके लेफ्ट हैंड्स टुगेदर कनेक्ट है एक जंक्शन पे, राइट हैंड्स कनेक्ट टुगेदर एट अनदर जंक्शन, दिस कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे हम लगा देंगे, इसमें ये लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी लंबी वायर है, दोनों को मिलाकर इंसुलेशन हटाकर फिर यहाँ पे लगाना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखिए, पैरेलल जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो बहुत कम रेजिस्टेंस होगी, तो यहाँ पे भी हम जो रेजिस्टेंस जिस वैल्यू से स्टार्ट करें वो भी कम होनी चाहिए, तो 1 ओम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए 1 ओम हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, 1 ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। तो 1 ओम पे चेक करते हैं, तो बीच में रखते हैं, ये ऑन है, यहां से देखते हैं कहां पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे चल रहा है, तो 1 ओम कम पड़ रही है, तो 2 ओम से स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 ओम से स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे आ रहा है नल पॉइंट, इट इज 50.5, 50.5 पे आ रहा है नल पॉइंट। ठीक है, 50 यहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है। तो 50 पे आ रहा है, तो 50 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने 2 ओम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस की है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब सेकंड 3 ओम पे देखेंगे, फिर थर्ड 4 ओम पे देखेंगे क्या बनता है। 3 ओम पे देखते हैं, यहां से एक और रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे, 2 + 1 हुआ 3 ओम। तो अब यहां से नल पॉइंट देखेंगे, ये आ रहा है यहाँ पे नल पॉइंट, इट इज 60.2, 60.2 पे आ रहा है नल पॉइंट, 60.2 सेंटीमीटर। 4 ओम ज्यादा जाएगा तो 1 ओम ही ले लेंगे यहाँ से, ये तो वहां जाएगा 70 पे। ठीक है, 2 अगर बीच में आ रहा है, 3 एक साइड से, 1 एक साइड से, 1 ओम पे देखते हैं, इसलिए 1 ओम भी रखेंगे, इससे ये बीच में ही आएगा। देखते हैं, देखिए यहां पे नल पॉइंट आ रहा है, इट इज 45.8, 45.8 आ रहा है यहाँ पे, 45.8 सेंटीमीटर। चेक करते हैं फिर से 1 ओम पे, यहाँ पे आ रहा है, तो 34.5, सॉरी 34.5, इसलिए मैंने शक हो गया कि मैंने सही नहीं देखा था। 34.5 आ रहा है यहाँ से, 5 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई यहाँ पे कंप्लीट। अब इसको ऑफ करते हैं, अब खाली कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से मेन रेजिस्टेंस, यहाँ से सबसे पहले R1 फिर R1 डबल डैश, R1 ट्रिपल डैश, 3 वैल्यूज आएंगे यहाँ से, ये पुट करना है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए और कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 ओम, 100 माइनस L, 100 माइनस L इज 47, 1 वोल्ट डिवाइड करना है L से 47 से 1 वोल्ट इंटू 4 1 वोल्ट, 4.5 आ रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट वैल्यू इज 4.5 ओम रेजिस्टेंस। अब इसी को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो दूसरी बार यही वैल्यू आना चाहिए, थोड़ा सा एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या निकलेगा। अब है 5300 माइनस 53 इक्वल टू डिवाइड बाई 53 इक्वल इंटू 5, ये आ रहा है 4.43 आ रहा है, 4.43 राउंड ऑफ करेंगे तो 4.4 ही बनेगा ये ओम। ओके, अब इसी तरह से इसको कैंसिल करते हैं। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इट इज 100 माइनस 58 इक्वल डिवाइड बाई 58 इंटू 6, यार है 4.34, ये भी 4.3 है, यह है 4.3 ओम। ठीक है, अब इनका मीन निकालते हैं। जब हम इसका मीन निकालते हैं वो आएगा R1 मीन वैल्यू, 4.5 प्लस 4.4 प्लस 4.3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो मीन वैल्यू आएगा 4.4 ओम। ठीक है, इसका मीन। इसी तरह से यहाँ पे 4 ओम R1 कॉइल की रेजिस्टेंस, R2 की कॉइल की जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है इट इज 3.8।
तो अब जब सीरीज में हमने इनको कंबाइन किया, जब हमें कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ रहा है एवरेज वैल्यू और एस सीरीज कॉम्बिनेशन की जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू इट इज 8.4। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी 2 ओम। ठीक है, 2 ओम, 2 ओम इज द रेजिस्टेंस। दीज आर द एक्सपेरिमेंट वैल्यूज। अब इनको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वेरीफाई करने के लिए तो यहाँ पे जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाना होगा पैरेलल में ऐसे। दिस R1 here, दिस इज R2। ठीक है, तो पैरेलल के लिए भी हमने दिखा दिया। कम से कम 2 सर्किट डायग्राम्स आपको बनानी पड़ेगी, 1 फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस तरह से यहां से दिखाएंगे हम ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आप कैलकुलेशंस फॉर वेरिफिकेशन फर्स्ट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वेरिफिकेशन ऑफ, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पहले लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आर एस सीरीज के लिए। ये दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या आ रहा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू? इट इज 8.4 ओम। 8.4 ओम इज द रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे लिखेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू एंड theoretical value R S dash से रिप्रेजेंट करेंगे प्लस R2 सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जो हमारे पास लॉ है, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये लॉ लगाएंगे, लॉ यूज करेंगे, फिर देखते हैं रेजिस्टेंस क्या निकलेगी। इट इज इक्वल टू R1 जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू इट इज 4.4 प्लस 3.8। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा? 2 8.2 आ रहा है। ठीक है ना, 8.2 ओम इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखेंगे देयरफॉर डिफरेंस इनके दायरे में देखेंगे क्या है, आर एस माइनस आर एस डैश, एक्सपेरिमेंट वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू, तो यहां से आएगा 4.4 माइनस 4.2, तो यहां से जो डिफरेंस आ रही है इट इज 0.2 ओम। डिफरेंस बहुत कम है, डिफरेंस है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जो हम वेरीफाई करते हैं ये वेरीफाई नहीं हो रहा है लॉ, वेरीफाई लॉ हो रहा है। अब डिफरेंस क्यों आ रही है? डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंट एरर्स। तो एक्सपेरिमेंट एरर्स यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम आना चाहिए। अगर ज्यादा आएगा, जैसे कि 8.5 है एक्सपेरिमेंट वैल्यू, अगर थ्योरेटिकल वैल्यू 15 ओम निकलेगा तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरीफाई नहीं हो रहा है। पर अब डिफरेंस है इट इज बिकॉज ऑफ, ये एग्जैक्टली निकलता है यही, पर अब डिफरेंस आ रही है बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स। तो यहां पे लिखेंगे आप रिजल्ट इसका, रिजल्ट within the limits of experimental errors, within the limits of experimental errors, the law of, यहाँ पे लिखेंगे पहले, within the limits of experimental errors, the experimental value which RS agrees with the theoretical value, that is R S डैश। तो ये दोनों वैल्यूज एग्री कर रहे हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर्स। ओके, देयरफॉर द लॉ ऑफ
series combination of registers stands verified. ठीक है, इस तरह से वेरीफाई हो गया। इसी तरह से अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेकंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पहले लिखेंगे यहां पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो निकला है आर टी, इट इज इक्वल टू 2 ओम। अब एंड थियोरेटिकल वैल्यू आर पी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, वो निकलेगा। उसके लिए रिलेशन हमने पहले बताई थी, वो क्या है, इट्स R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो व्हाट इज R1, जो पहले निकला है R1, यहाँ से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इट इज 4.4 प्लस R2 इज 3.8 इज इंटू डिवाइड बाई 4.4 प्लस 3.8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 2, ये से यहां से आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो थियोरेटिकल वैल्यू 2.02। अब देखते हैं डिफरेंस, देयरफॉर डिफरेंस क्या निकलेगी यहां से, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आरपी माइनस आरपी डैश, तो इट इज 2 ओम माइनस 2.02 ओम। तो यहां से डिफरेंस बहुत कम है, इट इज 0.02 ओम इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे तकरीबन एरर्स बहुत कम आ रही हैं, बहुत कम एरर्स आ रहे हैं यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो दिस शोज दैट, अगेन यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या विद इन it's clear from this about this discussion that calculations that within the limits of experimental errors, the experimental value RS RP agrees with the theoretical value R P dash. Thus, the law of parallel combination of resistors stands verified. ओके, इस तरह से मेरी ये कंप्लीट हो गया। तो हमने इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दिखा दिया। प्रैक्टिकली ये सही है या नहीं है, तो यहाँ पे दिखा दिया कि ये वेरीफाई हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।